Hello everyone, I'm Sakshi Sundarani, Faculty for Ethics at Vajiraman Ravi. Joining me today is Niketa, who's gotten an All India rank 473 at this year's UPSC results. So first of all, many congratulations Niketa, and thank you for joining us. Thank you for giving me this opportunity to come here and share my journey and preparation. I'm very grateful for the opportunity that Vajiraman Ravi has given me. Okay, Niketa, you've already done your graduation from IIT Roorkee itself, and you sat for the placements yourself and got a job but did not join and jumped to UPSC preparations. What was the motivation behind preparing for this mighty exam? So when I started my preparation, the vastness of the syllabus was something which was inspiring me, and I have previously done internships as well, so I have seen how the private sector is working. So the motivation behind sitting in a cubicle and continuing for doing my work for like next 8 hours or 9 hours, it was not very motivating. However, when I came to know about the UPSC job profile and the exposure, the amount of exposure that we get throughout our career, that was something that inspired me to opt for the UPSC. Apart from that, all of my relatives and parents have been in the government service, so that was also one of the important component that helped me in deciding that I should opt for UPSC instead of going for the private sector jobs. Okay, so the societal perception of a sarkari job was one of the motivations of why you wanted to do this. We can say that, kind of. Okay. Necessarily, it has been a long and arduous journey of 8 attempts for you. It in itself is a very... so it's a story of perseverance and resilience more than anything else. Take us through this journey of 8 attempts until you finally got this rank, and what were the setbacks that you had to face to reach this milestone? तो स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग से. आफ्टर ग्रेजुएशन आई इंस्टेंटली जम्प्ड इनटू द प्रिपरेशन. तो स्टार्टिंग के 4 अटेम्प्ट्स में तो आई वाज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स इटसेल्फ. तो हर बार 1 मार्क्स से 2 मार्क्स से रह ही रहा था, और जनरली वो सबके साथ होता है जो अभी प्रिपरेशन में है. दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, दैट दे आर नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स बाय 1 मार्क और 1.5 मार्क्स और समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पर जो मेरे को ऐसा लगता है मेरा मेजर इशू था प्रीलिम्स ना क्लियर करने का, वो था कि कंसोलिडेटेड मटेरियल नहीं था, रिवीजन का फ्रीक्वेंसी कम था. तो वो चीज़ें थी जो मैंने अगले अटेम्प्ट्स में उस पर वर्क किया, एंड फॉर्चुनेटली आई कुड क्लियर 2022 प्रीलिम्स एंड 2023 प्रीलिम्स. 23 तो बोलते हैं कि टफेस्ट प्रीलिम्स था अभी तक का, एंड आई प्रिपेयर्ड ओनली फॉर 5 days for 2023 prelims, because 2022 results came out just before 5 days of the prelims. तो वो 5 दिन में मैंने उतना प्रिपेयर कर लिया कि आई कुड लाइक एक डिसेंट जो गैप था कट ऑफ और मेरे मार्क्स में, वो गैप मेंटेन कर लिया था मैंने. तो वो चीज़ मुझे समझ आई कि नोट्स मेरे कंसोलिडेटेड होने चाहिए, रिवीजन मुझे मल्टीपल करना है, हर बुक्स को मुझे एग्ज़ाम में बैठने से पहले कम से कम 4 या 5 बार रिवाइज़ करना है. तो वो तभी हो पाता है जब आपके नोट्स शॉर्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड होते हैं. तो वो चीज़ मैंने की. दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प मी इन दिस ईयर्स प्रीलिम्स एज वेल. दिस ईयर ऑल्सो आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर 7 days फॉर प्रीलिम्स. यू हैव सीन दैट. तो प्रीलिम्स का तो यही है. एंड 22 में आफ्टर क्लियरिंग माई प्रीलिम्स आई गेव इंटरव्यू, एंड ऑल्सो इन 23 आई गेव इंटरव्यू. आई मिस्ड final list by 10 marks, and this year fortunately I could secure 473 rank. Okay, so in total you had 3 interview calls before this attempt, right? Yes. And so like you said, in the first 4 attempts you were not able to crack how to clear prelims, and there were certain fundamentals that you shifted in the right manner that led you to clearing prelims one after the other. Like in the sense that you not only were able to clear prelims, but even when you had say a margin of some 5 days, 6 days, you went on to clear prelims. So the fundamentals were put in place this time. So what were those fundamentals, if you could tell in detail, since prelims is around the corner, as to what were these issues or things that you worked on or you fixed, the number of tests that you decided on giving, or there was a certain way in which you analyzed PYQs that helped sort this issue? Starting from the number of tests that one should give during the prelims,
वो थोड़ा बाद में आएंगे, बट पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स में जनरली करना क्या होता है। तो जैसे पहले भी मैंने बताया कि नोट्स का कंसोलिडेशन और रिवीजन, वो 2 चीज़ मेजर होती है। उसके बाद में टेस्ट कितने देना है वो आपको पता चल जाएगा जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे आप रिवाइज करते जा रहे हैं। तो पहले जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तब ऐसा होता था 100 PYQs तो 100 टेस्ट्स यू हैव टू सॉल्व बिफोर सिटिंग फॉर द प्रीलिम्स। बट ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि 100 कर लेना चाहिए, 200 कर लेना चाहिए, बट उसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है वो रिवीजन का होता है। अगर आप 50 पेपर्स भी सॉल्व करके जाएंगे एंड इफ़ यू आर एबल टू प्रॉपरली रिवाइज दोज 50 पेपर्स, तो वो भी सफिशेंट है। आप 200 पेपर सॉल्व कर लो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो वो भी इनसफिशेंट है। तो पहली चीज़ वो है कि सबसे पहले तो कंसोलिडेटेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए और उसका मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए। उसके हिसाब से आप पेपर सॉल्व कीजिए, उतने पेपर सॉल्व कीजिए जितने आप रिवाइज कर पा रहे हैं। तो इसमें दोनों चीज़ हो गई कि क्या फंडामेंटल्स मेरे वीक थे। मेरे पास स्टार्टिंग में बहुत सारा मटेरियल था पढ़ने के लिए। इन माय लेटर अटेम्प्ट्स आई स्टिक टू पर्टिकुलर बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स मोस्टली एंड करंट अफेयर्स, बस उतना ही मैंने कंसोलिडेट किया। दूसरा है इम्पॉर्टेंस ऑफ PYQs। तो वो PYQs तो ऐसा है कि from PYQs you will know how examiner is going to frame a question। तो वो तो एक कोर चीज़ है जो जिस पर आपको काम करना ही करना है। इवन इफ यू आर नॉट सॉल्विंग एनी अदर टेस्ट पेपर्स, you have to solve PYQs। So as to get into the mindset of how the examiner is framing a thing, Yes. framing a question. Yes. What else? How did you analyze the PYQs in order to figure out what is to be done in the later स्टार्टिंग stages? में तो मतलब लाइक बाय 2023 आई अंडरस्टूड थोड़ा बहुत जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है थ्रू मल्टीपल वीडियोस एंड थ्रू माई सेल्फ एज वेल, पैटर्न एनालाइज करना। बट लास्ट ईयर आई हैव सीन सम वीडियोज फ्रॉम द स्मार्ट करंट अफेयर्स SOP क्लासेस in which the person was telling or explaining how examiner is thinking in a particular question। तो मतलब पढ़ाई वाला पार्ट हो गया था, अब स्ट्रैटेजी वाला पार्ट था जो कि वहाँ से इंटीग्रेट किया मैंने अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। तो वहाँ से वो वाला माइंडसेट डेवलप हो गया कि क्वेश्चन देख के समझ आ जाता है कि अच्छा ये वाला इसका आंसर होगा, ये नहीं होगा। और आई थिंक प्रीलिम्स में वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रैदर देन रीडिंग सो मच, वी हैव टू एनालाइज द PYQs एनालिसिस करके ये पहचानना ज़रूरी है कि किस टाइप के स्टेटमेंट्स में गलती हो सकती है, किस टाइप के स्टेटमेंट्स जो होते हैं जनरली करेक्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें इंटीग्रेट की मैंने लास्ट ईयर जब मैंने SOP क्लासेस देखी थी स्मार्ट करंट अफेयर्स बाजीराम से ही, तो वो चीज़ इम्प्रूव हुई है। और मुझे लगता है कि पढ़ाई के बाद में एक पार्ट अपना ट्रिक्स एंड टेक्निक्स वाला होना चाहिए और SOP हम लोग को डेवलप करनी चाहिए, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन नया होता है और आप पहले से कितना भी पढ़ के जाएं वहाँ पे कॉमन सेंस लगता है। एंड फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस कि हाउ एग्जामिनर इज फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, इन विच स्टेटमेंट्स ही इज मेकिंग मिस्टेक्स, विच स्टेटमेंट्स आर गोइंग टू बी करेक्ट किसी भी सिचुएशन में। तो वो आइडेंटिफाई PYQ से ही होता है। So majority of your task, while it is done by the statics, you also need certain tricks and techniques so as to understand how the examiner is framing the question. Yes. And your task does not just stop at completing your statics. You have to Exactly. also get into the exam solving mindset before you sit for the final paper, Yes. right? Okay. Now since we shared that it has taken you some attempts to get into this finally, but you also worked on your plan B together with this so as to ensure that meanwhile while you have to also sustain your finances jab aap padhai kar rahe ho, and you also have to have certain responsibilities towards your family as well. What did you do towards ensuring that plan B is secure, and how did it help you in finally getting better at or more comfortable with UPSC preparation so that it's not more of a do or die situation towards the end of it? Okay, so जब मैं स्टार्टिंग में प्रिपेयर कर रही थी देन आई हैड दिस माइंडसेट कि आई एम नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। तो जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद में आई विल बी एबल टू क्लियर द UPSC एग्जाम इटसेल्फ एंड आई विल बी एबल टू गेट द नेम इन माई PDF। तो उस ड्यूरेशन तक मेरे दिमाग में कोई प्लान भी था नहीं। बट व्हेन आई गेव माई 2022 अटेम्प्ट, व्हेन आई गॉट द इंटरव्यू कॉल एंड व्हेन आई मिस्ड द कट ऑफ, देन आई रियलाइज कि मतलब अनप्रिडिक्टेबिलिटी है इस एग्ज़ाम में एंड वी हैव टू थिंक
अबाउट द प्लान बी. तो वहाँ से आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग व्हाट अदर एग्जाम्स आई कैन गिव. सो आई हैव ऑल्सो गिवन MPPSC, द स्टेट PSC एग्जाम, and I have written 2 mains for that, and I came through this exam of Ministry of Home Affairs, through which I currently is posted in Immigration Department. तो वो सब मैंने देखा एंड वहाँ से मुझे ऐसा लगा कि एक प्लान भी मुझे सिक्योर कर लेना चाहिए, देन आई शुड गिव माई नेक्स्ट अटेम्प्ट. ये करने से मुझे ऐसा लगता है कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम जो आई मेरे दिमाग में, उसके बाद में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि आगे मेरा प्रिपरेशन का ट्रेजेक्ट्री कैसा होगा, मुझे कौन सा कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, या मतलब ऑब्वियसली फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल गया था. दूसरा ये कि इट हैज़ गिवन मी द एक्सपोजर एज वेल, कि जब आप किसी डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड होते हो तो आप वो लोनलीनेस वाला जो कंपोनेंट आ जाता है इस जर्नी में, जिसमें हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे होते हैं और बाकी चीज़ें नहीं कर रहे होते, वो भी थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है. तो जब मैंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, मुझे पता चला कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, क्या हायरार्की है, क्या प्रोसीजर्स हैं. तो उससे एक्सपोजर मिला मुझे इंटरव्यू में भी हेल्प मिली. कुछ क्वेश्चंस मेरे डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी पूछे गए, तो वहाँ पे आई वाज मोर कंफर्टेबल, आई कुड गिव गुड आंसर्स वहाँ पे. तो वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है जब हम अकेले प्रिपरेशन कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो बहुत सारा ऐसे मेंटल स्ट्रेस होता है. It impacts your confidence as well. You're not very confident to stand out in the public. हाँ. But I think getting a job and getting financial security gives you that confidence that it's okay. I'm coming from a place of confidence. Even if I don't make it, I'll still have some place to go. Yeah, sure. तो ये तो होता ही है. और मतलब ये सब चीज़ें मैंने खुद से पर्सनली फेस की है when I got the job and when I did not have anything in my hand, when I was preparing for the UPSC alone. वो भी देख लिया, काम करके भी देख लिया. तो I think plan B has worked out for me. तो yes. Now in the past 2 attempts, I believe you were working alongside your preparation. So again, there are many students who work along with their preparation because of the finances aspect, if not, or they do not want to take a break in their career. How did you manage, and what was your strategy to balance work with study so as to secure a good rank at this exam? तो ऑब्वियसली काम के साथ में प्रिपेयर करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट उसकी पहली चीज़ जो है वो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए कि आपको करना ही है ये एग्ज़ाम क्लियर, या फिर नॉट अबाउट दिस एग्ज़ाम बट एनीथिंग इन जनरल इन योर लाइफ. इफ़ यू वांट टू डू दैट, यू हैव टू बी वेरी रिजिलियंट अबाउट दैट कि करना है भाई. अब उसके बाद में जॉब तो आपका एक फिक्स्ड आवर्स में ही होता है. जनरली लोग 9 to 6 जॉब करते हैं, या फिर 10 to 5 मान लो, या 10 to 6. तो आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है, इवनिंग में टाइम मिलता है. आप अगर डेली कंसिस्टेंटली भी 4 घंटे निकाल पा रहे हैं अपने शेड्यूल में, देन आई थिंक इट्स डूएबल. ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर पाएंगे. देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू सिक्योर अ गुड रैंक. अलॉन्ग विद दैट यू नीड अ गाइडेंस एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी. बस इतना ही चाहिए. बाकी 4 घंटे आई थिंक डेली सफिशिएंट होते हैं और ईजिली आप मैनेज कर सकते हैं जॉब के साथ में. And I also believe that it gives you a sort of drive as well, that if you have only 5 hours a day to prepare for this exam, your strategy becomes more oriented towards, what am I going to gain out of these 5 hours today? Instead of, preparing for 10 hours a day, but doing it mindlessly without a strategy. Yeah. So that is how it would have helped. Okay, coming to your mains aspect now. Now with mains also, you were never stuck at the main stage, but again, because again, you were not able to get into the final list for the past 2 times. So how did you change your strategy at mains? And what was those areas of improvement or gaps that you finally figured out that, okay, these are the areas that I'll put more focus on? Again, you were a working professional, so you could not have given it your, entirely to all these areas. So what was those gaps that you found out that, okay, these are the areas that I'm going to put more focus into so as to be able to clear mains and finally get into the list this time? So, 2022 के अटैम्प्ट से स्टार्ट करते हैं. तो जब 2022 का अटैम्प्ट मैं लिख रही थी, तो उस टाइम पे मेरे पास डिसेंट कंसोलिडेटेड नोट्स थे, बट आई वुड नॉट से कि दे वर वेरी कंसोलिडेटेड. थोड़े बड़े नोट्स थे जो मैं ढंग से रिवाइज नहीं कर पाई थी, बट उसके साथ में मैंने टॉपर्स कॉपी थोड़ा एनालाइज किया था, तो मुझे पता था कि कैसा स्ट्रक्चर दिखना चाहिए आंसर का. तो वो चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करके आई थी. अनफॉर्चुनेटली आई कुड गेट द इंटरव्यू कॉल, बट आई वुड नॉट से दैट
कि आई हैव डन माई बेस्ट इन 22 अटेम्प्ट, क्योंकि केस स्टडीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लिखे थे, रिपोर्ट्स मेंशन नहीं थे और कोटेशंस नहीं थे, तो वैल्यू एडिशन पार्ट वाज लैकिंग इन 2022 अटेम्प्ट। 2023 अटेम्प्ट में मुझे मैंने आई हैव जॉइन वन प्रोग्राम ऑन द टेलीग्राम। उसमें मुझे पता चला कि कैसे हम लोगों को आंसर स्ट्रक्चर करना है, कैसे वैल्यू एडिशन को आप इम्प्लीमेंट करोगे, तो उसके अराउंड मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे। बट आई वुड अगेन से कि वो भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि उससे मार्क्स इम्प्रूव हुए बट उतने मार्क्स इम्प्रूव नहीं हुए जो मुझे लिस्ट में लेके आ सके। तो लास्ट ईयर व्हेन आई जॉइन स्टेप अप एज अ मेंटर here at Wajiram, and when I talked to students, they told me their issues and they asked me the solutions around those problems, वही problems जो मैंने कभी face की थी। तो उनको हेल्प करते करते आई ऑल्सो फाउंड सम ऑफ द सोल्यूशंस टू माई प्रॉब्लम्स, कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, कि आंसर अगर उनका एनालाइज कर रही हूँ मैं, तो इसमें ये चीज़ मिसिंग है, ये ऐसे बेटर दिख सकता है। तो दैट वाज द थिंग दैट आई इम्प्लीमेंटेड दिस ईयर इन 2025 अटेम्प्ट। तो वो एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि 22 में आई रियलाइज्ड कि मेरे नोट्स और कंसोलिडेटेड होने चाहिए, तो आई मेड डिजिटल नोट्स। तो वहाँ पे फिर आगे वैल्यू एडिशन पार्ट करती रही मैं थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स एंड मतलब हैंड आउट्स जो भी अवेलेबल होते हैं वैल्यू एडिशन मटीरियल। तो फॉर GS3 हियर आई यूज्ड द हैंड आउट्स फ्रॉम स्मार्ट करंट अफेयर्स अगेन फॉर साइंस एंड टेक एंड दिस इकोनॉमी एंड सोशल जस्टिस। तो ये 3 मैंने यूज़ किए थे। उसके अलावा ऑब्वियसली यू हैव ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट विद एथिक्स। तो if you remember, I have shown you my copy, one of the test copies, in which I just mindlessly put some diagrams. उसमें आपने बताया कि कैसे जो क्वेश्चन का डिमांड है उसके हिसाब से I should make diagrams rather than like if a question is on EI, I was making a random EI diagram. तो वो चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो कोटेशंस कैसे बेटर इंट्रोडक्शन में आ सकते हैं, हाउ कैन आई यूज़ कोटेशंस इन कंक्लूजन्स, वो भी बताया था आपने। तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की 2025 अटेम्प्ट में, तो आई हैव लाइक एबल टू सिक्योर द रैंक एंड सो थैंक्स टू यू ऑल। उसके लिए तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। Thank you. Now coming to sociology as well. You have a good score in sociology this year. So what was your strategy for sociology per se, and what were the areas that you improved on, the value addition aspects that you worked on to score good in sociology? सोशोलॉजी में भी अगेन आई वॉज मेकिंग द सेम मिस्टेक कि बेसिक्स कर लिया, बेसिक्स के नोट्स हैं बट उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है। तो व्हाट आई चेंज दिस ईयर इज़ कि जो भी मेरे थिंकर्स हैं सारे, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, उसकी डिफरेंट थ्योरीज़ हैं, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म हो गया, एलियनेशन हो गया, तो इनका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, उसके कीवर्ड्स आई हैव कलेक्टेड दिस ईयर। कि सपोज डिजिटल सर्विलेंस है, वो मैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती हूँ, वो एक मेंटल फ्रेमवर्क मैंने बनाया, ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा काम किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वन ऑफ माई फ्रेंड शी गॉट 40, आई एम फॉरगेटिंग हर रैंक, बट इन 2023 शी गॉट वेरी गुड रैंक एंड शी हैड 285 स्कोर इन सोशोलॉजी। आई टॉक टू हर, उसने मुझे बताया कि जब हम कि राइट मोर टेस्ट्स, जितने टेस्ट आप लिख पा रहे हो उतना बेटर है, कुछ भी लिख कर आओ, कम बैक एंड रिवर्स इंजीनियर करो वो क्वेश्चन को, कि इसमें मैं इसको बेटर कैसे बना सकती हूँ, कौन सा डायग्राम मैं डाल सकती हूँ और किस टाइप के कीवर्ड्स और एंटर हो सकते हैं, एग्जांपल्स कौन से डाल सकते हैं। तो वो वाला काम मैंने आके किया था। उसके अराउंड मेरे नोट्स मैंने अपडेट किए, लाइक वैल्यू एडिशन वाला पार्ट वही। अलॉन्ग विद दैट जैसे सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट हो गया या फिर डेमोक्रेसी हो गया, तो अभी रिसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो भी, उनके भी कीवर्ड्स मैंने कलेक्ट किए थे और वो मैं इम्प्लीमेंट करती थी आंसर राइटिंग में। तो आई थिंक दैट वाज द रीज़न because of which I was able to increase my marks in sociology. Okay, coming back to mains and ethics per se, since ethics was one subject that we connected for. So what was your general preparation strategy for ethics, and how did you increase your marks from 2022 to this year's? What was the general preparation strategy, and also for specific areas like say code based questions या जो 10 markers हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि you can also diversify
and better present, better perform there with regard to the case studies, let us say comparatively जहाँ पर कम scope होता है to write differently. For example, अगर pros and cons हैं, options हैं, तो everyone will be making a similar kind of structure there at least. So how did you differentiate in your ethics paper? तो 2022 में एथिक्स के नोट्स जो मैंने बनाए थे वो कीवर्ड्स के अराउंड बनाए थे कि एक कीवर्ड होना चाहिए, कोटेशन होना चाहिए, डायग्राम होना चाहिए. तो इतना ही मैंने बस एथिक्स के लिए प्रिपेयर किया था पहले. उसमें व्हाट आई वाज लैकिंग वाज करंट अफेयर्स का इंटीग्रेशन, जो मैंने इस साल किया, जो आपने बताया कि कैसे करना चाहिए, तो वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट की है. दूसरा ये चीज़ कि केस स्टडीज़ में जो आप बोल रहे हो कि डायमेंशंस और जो स्ट्रक्चर है वो जनरली सब लोग सेम ही बनाते हैं, तो वहाँ पे वी कैन वर्क ऑन प्रेजेंटेशन. कि जैसे अगर मुझे स्टेक होल्डर्स लिखने हैं तो आई कैन मेक अ टेबल, या फिर मैं एक डायग्राम यूज़ करके स्टेक होल्डर्स दिखा सकती हूँ रैदर देन जस्ट राइटिंग कि स्टेक होल्डर्स ये है. दूसरी चीज़ ये कि उसी में कितना पॉइंट्स प्रोज या कॉन्स अगर मुझे लिखना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है कोई चीज़, तो वो अगेन आई कैन यूज़ द टेबल देयर, और एक रफ बार डायग्राम बना सकती हूँ मैं. सिमिलरली अभी इस बार मैंने एक अप्रोच जो इंटीग्रेट किया था वो ये था कि जब आता है डिसाइड करने के लिए, एथिकल डिसीजंस लेने के लिए, तो देन आई मेड अ ग्राफ कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए, सेकंड ये, थर्ड ये, उसके हिसाब से वो रिप्रेजेंट किया था मैंने. एंड उसमें उसके बाद में आई यूज्ड टू राइट कि ओके दीज आर द थिंग्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ मी, अब बेस्ट डिसीजन मेरा ये होगा. तो वहाँ पे मैंने एक डायग्राम इंक्लूड किया जो जनरली नहीं करते हैं लोग. हम लोग जनरली बस ABCD करके लिख के आ जाते हैं एंड देन फिर फाइनल हमारा कंक्लूजन होता है. उसके अलावा हाउ टू इंटीग्रेट थ्योरीज, जैसे योगक्षेम तो बहुत फेमस है, निष्काम कर्म कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा और कौन सी थ्योरीज़ हैं, वो वैल्यू एडिशन आपके नोट से मुझे मिला था. वहाँ से ही देखा था मैंने कि कौन कौन से एक्स्ट्रा थ्योरीज़ हैं जो मैं डाल सकती हूँ. जस्टिस थ्योरी कहाँ डाल सकते हैं, बेनालिटी ऑफ ईवल कहाँ कहाँ डालना बेटर है, क्योंकि हर जगह सब लोग यही डाल देते हैं, बट वहाँ पे भी हमें सिलेक्टिव कैसे होना है वो आपने बताया. तो ये चीज़ें इस बार मैं एथिक्स में इंटीग्रेट करके आई थी, तो उससे ऑब्वियसली मतलब स्कोर डिसेंट ही है मेरा. Okay, and what was your paper attempting strategy for ethics? Did you attempt the 10 markers first, or did you go for the case studies first, or was it a mix of both? नहीं, मेरा जनरली ये रहा है कि आई अटेम्प्ट 10 मार्कर्स फर्स्ट एंड देन केस स्टडीज़ करती हूँ मैं. तो उसके लिए मेंटली आई प्रिपेयर माई सेल्फ कि लाइक आई हैव टू गिव 1 to 1 hour and 15 minutes to 10 मार्कर्स. तो उतना होता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, बाकी टाइम केस स्टडीज़ को डिवोट करना होता है. ये ऐसे मेरा मेंटल स्ट्रैटेजी रहता ही है. तो मैं कोशिश करती हूँ कि 1.25 घंटे तक 10 क्वेश्चन सारे 10 मार्कर जो 13 क्वेश्चन आते हैं वो पूरा कंप्लीट कर लूँ. तो वही मैंने हमेशा प्रैक्टिस किया और वो मेरे लिए वर्क भी किया है. इस बार ही इन द एथिक्स पेपर UPSC थ्रू सम बाउंसर्स, one after the other, they give you some civil servant questions कि एक सेम क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी it's similarly toned set of for a civil servant in public administration related question. What did you do to make your answers different in these questions? क्योंकि कंटेंट सेम ही था सब में, तो वहाँ प्रेजेंटेशन पे काम किया मैंने, अलग अलग प्रेजेंटेशन किया. एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली डाइवर्सिफाइड कर पाई मैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा लिस्ट था एग्जाम्पल्स का. तो points, arguments were same, but through examples I could differentiate my answer. Okay, so via structures of making some diagrams here and there, yes, writing newer examples के लिए people struggle a lot. Like usually जो मैंने देखा है copies में people write general examples जो सब लोग लिख के आ रहे हैं, वही 5-6 civil servants हैं जिनको year after year you have to quote. But then how did you differentiate there, and what was your source per se of preparing for ethics examples? मैं तो जनरली आई रिलाई ऑन न्यूज़पेपर्स, तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स वर फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ. अपार्ट फ्रॉम दैट टॉपर्स कॉपी एक और होता है जिसमें से आप यूज़ कर सकते हो. उसमें आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं. उसके अलावा कोई भी वैल्यू एडिशन मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो. मतलब ऑब्वियसली आई हैव द सीन हर नोट्स ओनली,
तो मैं आपकी नोट्स में मतलब मैंने देखा था डिफरेंट एग्जाम्पल्स, तो वहाँ से जो भी मुझे अच्छा लगा वो चीज़. अपार्ट फ्रॉम दैट शी ऑल्सो टोल्ड मी टू यूज़ द ChatGPT एंड AI ऑल्सो, कि कोई भी कीवर्ड्स के अराउंड कैसे इंटरनेशनल, सोसाइटल और क्या बोलते हैं नेशनल लेवल पे आप कैसे एग्जाम्पल्स कलेक्ट कर पा रहे हो. तो वो चीज़ मैंने की थी कि जो भी कीवर्ड्स है उसका कोई एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल, कोई एक पर्सनल लेवल पे एग्जाम्पल, सोसाइटल लेवल पे एग्जाम्पल. तो वो चीज़ कलेक्ट करके आई हैड यू नो ऐसे पूरा एक बंच था मेरे पास एग्जाम्पल्स का, जो कि मैं रिवाइज करके इम्प्लीमेंट कर पाई थी. तो वो चीज़ भी मुझे आपने ही बताई थी कि कैसे मतलब एग्जाम्पल्स को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं हम लोग. तो जिससे आई हैव नॉट यूज्ड वन एग्जाम्पल इन द अदर क्वेश्चन. Okay. हर एग्जाम्पल डिफरेंट था मेरा आंसर्स में. Okay, coming to a different aspect per se, Nikita, you were a mentor yourself in Step Up, and you'd gotten guidance yourself from Vajiram itself. So you know both sides of the story, being an aspirant and giving guidance as a mentor. So what is your take on this? What is the role of mentorship in guiding an aspirant? Okay, or can it reduce the years that this arduous journey takes per se? What is your take on this? Obviously, if someone is there to help you, to tell you what to do, what not to do, तो उससे years तो कम हो ही जाते हैं. By 2022 I did not know कि mentors exist करते हैं या mentorship program कुछ चल रहा है. When I joined as a mentor, I got to know कि वो ऐसा भी program है. And through mentorship, obviously you get the guidance, you know कि क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ आप छोड़ सकते हो. यू ऑल्सो गेट द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन हु हैज़ डिवोटेड लॉट ऑफ ईयर्स. वो अपनी मिस्टेक्स बताता है एंड उससे आपको समझ में आता है कि मुझे क्या नहीं करना है. ठीक है, दे विल गिव यू मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स. आप इम्प्लीमेंट करके देखते हो कि अच्छा ये वाला वर्क कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो उसके हिसाब से मतलब पर्सनल गाइडेंस यू विल गेट द एक्सपीरियंस of the other person. Apart from that, you also know the strategy that you have to follow that is going to work for you. उसके अलावा कोई आपको आपके आंसर्स भी होता है रिव्यू करने के लिए, हेल्प करते हैं कि अच्छा इसमें इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं मेंटर्स, और वो उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. अगर मतलब इट्स नॉट कि यू हैव टू फॉलो देयर स्ट्रैटेजी, बट इफ़ यू गेट सम इनसाइट्स कि हाउ आई शुड अप्रोच दिस एग्जाम, you can definitely reduce number of years. Okay, so it can basically act as a course corrector Exactly. in times of need, कि जहाँ पर आप गलत जा रहे हो, instead of you actually sitting for the exam and then finding out yourself that this was a blunder, a mentor can help you with that, basically save some years and help you with the preparation. And एक और इशू होता है इस प्रिपरेशन में, हमें लगता है कि मैं ही आई एम द पर्सन हु इज़ गोइंग थ्रू द मेंटल स्ट्रेस, और फाइनेंशियली मेरे को ऐसा लग रहा है, बाकी एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग, बहुत खुशी वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं. बट व्हेन यू टॉक टू अ मेंटर, यू ऑल्सो गेट टू नो कि अच्छा उन्होंने भी किसी टाइम पे ये सब चीज़ें फेस की है, तो वो नॉर्मलाइज हो जाती है आपके लिए. तो वहाँ से आपको थोड़ा मेंटल फ्रीडम भी मिलता है कि यार ठीक है, मतलब ये होता है, ये इस जर्नी का पार्ट है, हाइज एंड लोज आपको आएंगे इस जर्नी में, तो वो नॉर्मलाइज होता है. प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है. ऑब्वियसली टारगेट सेटिंग में भी हेल्प करते हैं मेंटर्स. Right. तो मतलब है, रोल तो है, आई वुड नॉट डिनाई देयर रोल. Now since we just spoke of mental stress during this preparation and the lack of motivation, for you it's been a story of perseverance, and for you many a times it was a close call making it to the final list. Uske baad picking up yourself for the next attempt in a matter of say 5 days, 7 days at a stretch. What did you do and how did you motivate yourself? Sometimes it happens that even your parents doubt you, that क्या पता क्या कर रहे हैं, है ना. तो उस टाइम पे what was your motivation कि नहीं, this is what I want to do, even if I have job already and I'm working already, I still want to go and prepare and give this exam and I want to clear this exam. What was the motivation in those times? इसमें दो चीज़ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ माई ओन पर्सनैलिटी दैट आई एम वेरी एम्बिशियस. तो एक जगह टिक नहीं पाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा. दूसरा ये कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट किया है. तो जब भी ऐसा कुछ होता था कि नहीं हो रहा है, लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो माई जीजू कंटिन्यूसली मोटिवेटेड मी कि कोई बात नहीं, एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, और इतना
किया है, इतना पढ़ा है, तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा ही होता है. तो जो इन्वायरमेंट था वो बहुत अच्छा था मेरे अराउंड. फॉर्चुनेटली मतलब सबको नहीं मिलता है, तो उसमें हमें खुद को मोटिवेट करते रहना चाहिए और करना भी चाहिए. और दूसरा ये चीज़ कि सोसाइटल परसेप्शन में हम बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा. तो वो चीज़ मैं ज़्यादा सोचती नहीं थी, क्योंकि अगर इफ़ यू आर एबल टू डिलीवर द रिजल्ट समडे और द अदर, यू विल बी एबल टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी. Right. ये तो है. तो वो चीज़ मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली रही है. तो ये 2 मेजर फैक्टर्स रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स तो हैं. फ्रेंड्स भी मेरे बहुत सपोर्टिव रहे हैं. बिफोर वी आर सिटिंग हियर फॉर्मली, यू आर माई गुड फ्रेंड. तो शी हैज़ ऑल्सो सपोर्टेड मी अ लॉट. बहुत सारी चीज़ों में हेल्प की है, मेन से लेके मेंटली सस्टेन करती रही है ये टाइमली. तो ऑब्वियसली मतलब फ्रेंड्स, फैमिली और खुद का मोटिवेशन वॉज समथिंग दैट हैज़ helped me come here and come sit and give this interview to her. Okay. Before we close this podcast, I would want you to give some advice. People who are going to appear in the next year or next to next year, or who are stuck in this cycle of say third attempt, fourth attempt, just may they are reaching close to the final list and are not able to make it. What would you say to them? Not just as a strategy, but as a motivation. कि in those moments where you know they feel very lonely and they feel that शायद नहीं हो पाएगा, what should they feel and what should they think so as to be able to just you know sustain yet another day at this exam? जिस दिन मतलब बहुत सिंपल सा मेरा तो फंडा है, जिस दिन मुझे लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, उस दिन मैं घूम के आती हूँ, सो जाती हूँ. एंड नेक्स्ट आई एम एबल टू लाइक सिट विद माई सेल्फ एंड थिंक कि मुझे करना भी है ये चीज़ या नहीं करनी है. तो उसका आंसर हमेशा येस ही होता था. ऑब्वियसली थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद में आई थिंक वी शुड, if you think that you are not able to do this, you should find out the reasons कि आपको क्यों लगता है ऐसा कि आप नहीं कर पाएंगे. Is it because of the financial thing, family वाला thing? ये सब चीज़ है तो you should look for the plan B. That is what I did. ठीक है. अगर वैसा नहीं है तो मतलब जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट जो होता है अच्छे के लिए होता है. अगर नहीं हो रहा है तो उसमें भी कुछ अच्छा है, और हो जाएगा तो भी उसमें कुछ अच्छा होगा. और अभी इस पॉइंट पे नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ मुझे काम करना है. तो वो माइंडसेट के साथ आप जाओगे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये एग्ज़ाम जो है वो आप क्लियर नहीं कर सकते हो. So if the day gets too difficult, just sleep it off. Yes. That was your strategy. And then next day, you can just figure out rest of the things. I think this is a good approach. One way of dealing with stress and anxiety. Okay, thank you so much, Nikita. This has been an insightful and a learning session for all of us. Your journey continues to tell that there are barriers that only perseverance can break. And we wish you all the best for the future endeavors. Thank you so much. Thank you.